اگر دوبارہ اس شاذب کے بچے نے میرے معاملوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی نا تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس کی گردن مروڑ دوں گی۔ ایمن غصے کے مارے پاگل ہو رہی تھی اور لانچ میں گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ جس کی برائی کر رہی ہے وہ خود لانچ کے دروازے پہ کھڑے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ پاس کھڑی سحر نے ایمن کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، لیکن ایمن تو اپنی ہی دھن میں تھی۔ سحر، تم خود مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ گھر کا بڑا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے سر پر چڑھ کے ناچنے لگے۔ اتنا اچھا بھلا لندن میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں ہے ہمارے سر پہ مسلط ہونے کے لیے کیوں آ گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ لندن کے لوگ بھی اسے جھیل نہیں پائے ہوں گے، تبھی اس نے وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور پاکستان بھاگ آیا۔ اور شاذب کا صبر اب کی بار ختم ہو گیا تھا۔ جب سے وہ حویلی آیا تھا تب سے اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ شاذب تو اس لیے خاموش تھا کیونکہ وہ داجی کی سب سے لاڈلی پوتی تھی۔ ایمن کو کچھ بھی کہنے کا مطلب تھا کہ سیدھے دادا جی سے دشمنی لو۔ سہن نے جب ہی شاذب کو غصے سے لانچ مارتے دیکھا، وہ بھی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلی تھی۔ ایمن پیچھے سے چلائی، ارے سہر، تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ تم تو ایسے ڈر کے بھاگ رہی ہو جیسے سامنے کسی جلاد کو دیکھ لیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے سامنے شہزیب کو کھڑا پا کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شاذب کے ماتھے کی پر غصے کی لکیریں ابھر آئی تھی۔ وہ اس دبلی پتلی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ شاذب نے اس کے چہرے کے پاس جھکتے ہوئے غصے میں کہا، ارے اب خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ بولو نا جو کہہ رہی تھی، میں بھی تو سنوں کہ میرے بارے میں کہ تمہارے کتنے اعلیٰ خیالات ہیں۔ دادا جی تو کہتے تم بہت ہی تمیزدار ہو ایمن بی بی، اب کیا بکری کی طرح میمیانا شروع کر دیا ہے؟ دیکھو لڑکی، کافی وقت سے میں تمہاری فضول بکواس برداشت کروں، اب اگر دوبارہ تم نے میرے بارے میں ایک غلط لفظ بھی کہی، ایک بار بھی کہی، تو تمہاری جان لے لوں گا۔ اسے میری طرف سے آخری انتباہ سمجھو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں سمجھاؤں گا نہیں بلکہ سیدھا سبق سکھاؤں گا۔ جیسے شاذب اندر جانے کے لیے مڑا، ایمن کی زبان میں پھر سے خارش ہونے لگی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑائی، پتہ نہیں جیسے کسی بہت بڑی سلطنت کے شہزادے ہوں، ان جیسی شکل والے تو میں اپنے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے بھی نہ رکھوں۔ اور دیکھو مجھ پر غصہ تو ایسے دکھا رہے جیسے لندن سے نہیں پوری دنیا فتح کر کے آئے ہوں۔ ایمن کی یہ بڑبڑاہٹ سیدھی شاذب کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ غصے میں واپس سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ ایمن نے فوراً اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، جانے انجانے میں ایک بار پھر اپنے دل کی بات زبان پہ لے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ معافی مانگتی، شاذب نے اسے لاؤنج سے باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا۔ ایمن نے بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ اوہ شاذب بھائی، صبح میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں… لیکن شاذب نے اسے آگے کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے معصوم سا چہرہ بنایا، اپنا سر جھکایا، چپ چاپ لان سے باہر نکل گئی۔ اسے ہمیشہ اپنی اس لمبی زبان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اس کی امی اکثر اس سے کہتی تھی، ایمن، جس دن تم اپنی زبان پہ قابو کرنا سیکھ جاؤ گی، اس دن تمہاری زندگی کی آدھی مشکلیں اپنے آپ حل ہو جائیں گی۔ شاذب اسے اپنے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے یعنی باغیچے لان میں لے آیا تھا۔ شام کا وقت تھا اور دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاذب نے ملازم کو آواز دے کر لائٹیں جلانے کا حکم دیا اور خود لان میں رکھی ایک کرسی پر ٹھاٹ سے جا کر بیٹھ گیا۔ صبح بہت تیز آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے درختوں کے سوکھے پتے پورے لان میں بکھرے پڑے تھے۔ شاذب نے ایمن کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، جھاڑو اٹھاؤ اور اس پورے لان کی صفائی شروع کر دو۔ آج میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ صفائی کرنے والے لوگوں کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ دراصل ایمن نے شاذب کو موازنہ گھر کے ملازموں سے کیا تھا اور یہ بات شاذب کی انا اور عزت نفس کو چبھ گئی تھی۔ صاحب کا غرور اس وقت ساتویں آسمان پر تھا اور ایمن میڈم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی غصے کا شکار بننے والی تھی۔ میں نے کہا جھاڑو اٹھاؤ اور یہاں کی صفائی شروع کر دوں، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پوری زندگی یاد رکھو گی۔ شاذب کی اتنی تیز آواز سن کے ایمن ڈر کے مارے اچھل پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور کچھ تو آنسو تو اس کی پلکوں سے جھلک کر سیدھے اس کی گالوں پر آ گرے، لیکن شاذب پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی انا مجروح ہوئی تھی اور وہ ہر حال میں ایمن کی اس بدتمیزی کا سبق سکھانا چاہتا تھا۔ حویلی کا لان بہت بڑا تھا اور اتنے بڑے لان کی صفائی کرنے کے بارے میں سوچ کر ہی ایمن کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے آج تک اپنے کمرے کی بھی صفائی نہیں کی تھی اور یہاں سے پورے لان کی صفائی کرنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ تبھی شاذب اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور لان میں چکر کاٹتے ہوئے سخت آواز میں بولا، مس ایمن، آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ اگر اس آدھے گھنٹے میں آپ نے صفائی پوری نہیں کی تو یاد رکھنا میں پوری رات آپ کو اسی جگہ کھڑا رکھوں گا۔ ایمن کے دل میں تو آیا کہ جھاڑو اٹھا کے سیدھے شاذب کے منہ پہ مارے اور وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی ایسا کرنا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے جیسا ہوگا۔ اسے مدد کی امید میں حویلی کی کھڑکیوں اور دروازوں کی طرف دیکھا تو اس کے سارے کزنز وہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔
दानिश तो बार बार इसे अंगूठा दिखाकर चिढ़ा रहा था। बदकिस्मती से आज इसकी ढाल बनने वाले दादाजी भी शहर से बाहर गए हुए थे। अमन ने जोरों शोर से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जब आधा घंटा बीत गया तो शाहजेब अपनी जगह से उठा और लॉन का मुआयना करने लगा। अमन दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि शिकार शाहजेब ज्यादा बारीकी से चेक न करे, क्योंकि इसने चालाकी दिखाते हुए सारा कचरा और सूखे पत्ते झाड़ू समेत फेंट कर घास के नीचे छुपा दिए थे। सफाई के नाम पर इसने सिर्फ 2-4 दिन के ही उठाए थे, लेकिन एमन का डर सच साबित हुआ। शाहजेब ने पत्ते देख लिए। अब एमन की सजा और बढ़ गई थी। शाहजेब ने इसे हुक्म दिया कि वो पूरी रात इसी जगह पर खड़ी रहेगी। 1 घंटे तक तो एमन जैसे तैसे रो धो के वहां खड़ी रही, लेकिन अब उसके पैरों में तेज दर्द होने लगा था। दूसरी तरफ शाहजेब वहां से 1 मिनट के लिए भी हटने को तैयार नहीं था। वो आराम से एक कुर्सी पर टेक लगाया और दूसरी कुर्सी पे अपने पाँव फैलाए बैठा हुआ था और मजे से अपने मोबाइल में मसरूफ था। एमन को इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। लंदन से पढ़कर आया है, पर अकल नाम की कोई चीज नहीं, जाहिल कहीं का। और यही सोच सोचे इसके दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। तभी अचानक एमन की नजर शेरू पर पड़ी। शेरू एक कुत्ता था जिसे दानिश 2 दिन पहले ही अपने किसी दोस्त से मांग कर लाया था। दानिश इस कुत्ते की रस्सी हाथ में पकड़े एमन को शरारती नजरों से देख रहा था। इसकी आंखों का इशारा समझते ही एमन का दिल खौफ के मारे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। दरअसल एमन को बचपन से ही कुत्तों से शदीद खौफ था। एक बार एक कुत्ता इसके पीछे पड़ गया था। इसके बाद इससे वो जहां भी कुत्ता देखती बुरी तरह हरासा और खौफजदा सी हो जाती थी। जब इसने देखा कि दानिश कुत्ते को इसकी तरफ छोड़ सकता है, तो इसने घबरा कर दबी आवाज में अपने सामने बैठे शाहजेब को पुकारा, लेकिन शाहजेब ने एमन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और टहलता हुआ सीधा स्विमिंग पूल के किनारे जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ दानिश ने जानबूझकर अपने हाथ से कुत्ते की रस्सी छोड़ दी। वो कुत्ता जो पहले से ही एमन को घूर रहा था, ऐसा लगा जैसे इसने एमन को ही अपना हदफ चुन लिया हो। शेरू फौरन भागते हुए एमन की तरफ लपका। कुत्ते को अपनी तरफ आता देख एमन जोर से चिल्लाई। शाहजेब ने हैरान होकर पीछे पलट कर देखा तो वो बेवकूफ लड़की चीखती चिल्लाती हुई सीधी इसी की तरफ भागी आ रही थी। एमन खौफ के मारे पीछे मुड़ मुड़ कर कुत्ते को देख रही थी, जबकि शाहजेब की नजर इसके चेहरे पर थी। एमन सीधी शाहजेब से जा टकराई। शाहजेब अपना तवाज़ुन संभाल न पाया और दोनों के दोनों सीधे स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरे। दानिश ने जैसे ये नजारा देखा, इसके होश उड़ गए और वो फौरन हवेली के अंदर की तरफ भाग गया। वही कुत्ता पुल के किनारे खड़ा होकर इन दोनों को देख कर लगातार भौंकने जा रहा था। यहाँ पानी के अंदर एमन की हालत बहुत खराब हो रह चुकी थी, क्योंकि इसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। वो शाहजेब को पकड़ के इसके ऊपर चढ़ने कोशिश कर रही थी। इस बात में बिल्कुल बेखबर थी कि जब इसकी तेज धड़कनें शाहजेब को महसूस हो रही थी, तो शाहजेब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। शाहजेब ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा होता। एक बार तो इसने एमन को खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल डूबने के डर से एमन ने दोबारा से गले लगा लिया। एमन की घबराहट और उसकी नजदीकियां महसूस करके शाहजेब के दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थी। वो मासूम लड़की नहीं जानती थी कि अपने इस नादान हरकत से वो शाहजेब के सब्र का इम्तहान ले रही है। ईमान रोते हुए कहने लगी, प्लीज शाहजेब भाई, मुझे खुद से दूर मत कीजिए, प्लीज मुझे अपने साथ ही रखिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहते हुए अमन ने डर के मारे लगभग इसके गोद में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक इसे कुछ अलग महसूस हुआ। घबराहट में इसका हाथ शाहजेब के सीने पर टिक गया और इसे शाहजेब की आंखों में देखा, जो इस वक्त जज्बात के मारे बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। अमन को अचानक अपनी इस गुर्बत का एहसास हुआ तो इसने शर्म और डर के मारे जोर से अपनी आंखें कस के बंद कर ली और तेजी से पीछे की हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्योंकि वो तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वो पानी में फिर से डूबने लगी। ये देखकर शाहजेब ने बगैर वक्त गंवाए फौरन आगे बढ़ के यमन को इसके कमर से थाम कर ऊपर उठाया और पानी में अपने करीब खड़ा कर दिया। अब इस जगह पानी कम था जहां यमन आसानी से खड़ी हो सकती थी। यमन में भी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और इसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो डर के मारे शाहजेब के कितना करीब आ गई थी। तभी अचानक पानी के अंदर एमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे शाहजेब की उंगलियां इसकी कमर पर धीरे से हरकत कर रही हैं। पहले तो इसने इस बात को अपनी गलतफहमी समझा और चुप रही, लेकिन जैसे ही एमन को शाहजेब का हाथ अपनी कमीज के पास महसूस हुआ, वो घबरा कर तेजी से पीछे हट गई। तब शाहजेब होश की दुनिया में वापस आया। अपनी इस अजीब सी हरकत और जज्बात को छुपाने के लिए वो गुस्से में एमन पर चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरे सारे कपड़ों का सत्यानाश हो गया। मुझे थोड़ी देर में अपने दोस्त के साथ रात के खाने पे जाना था। शाहजेब की इस तरह डांटने पर एमन चुपचाप खड़ी रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वो शाहजेब की नज़रें अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। शाहजेब की नज़रें एमन के चेहरे से हटकर इसके कपड़ों पर जा टिकी थी। एमन ने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था, जो पानी में पूरी तरह भीगने की वजह से इसके जिस्म से चिपक गया था। इस हालत में इसका रूप और भी निखर कर सामने आ रहा था। शाहजेब के लिए इस वक्त एमन से अपनी नज़र हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था।
تبھی اچانک اس کے دماغ میں حویلی کی باقی کزنس اور لوگوں کا خیال آیا جو کھڑکیوں سے سب دیکھ رہے تھے۔ وہ ایمن کو دوسروں کی نظروں کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایمن کے کندھے پر جو دوپٹہ تھا وہ تو پہلے ہی پانی میں گر کر تیر رہا تھا۔ شاہزیب نے ایمن کو سہارا دے کر سوئمنگ پول سے باہر نکالا۔ پانی سے باہر آتی ایمن شرم کے مارے اندر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن تبھی شاہزیب کی سخت آواز سن کے اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ شاہزیب نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا، کیسی حالت میں حویلی کے اندر جانے کا ارادہ ہے؟ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم سے کم میری عزت کا تو خیال کرو۔ ایمن شرمندگی سے اپنی انگلیاں چٹکاتی ہوئی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہیں پیچھے کھڑا شاہزیب بھیگے کپڑوں میں ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ شاہزیب نے اپنی گرم واسکٹ جیکٹ نکالی اور ایمن کے کندھوں پہ ڈال دیا تاکہ وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ اس کے باوجود ایمن کی ٹانگیں تھوڑی سی نظر آ رہی تھی۔ چلو اب چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے اندر آؤ۔ ایمن اپنے آنسو پی کر خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شاہزیب نے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں کھڑے تماشا دیکھتے ہوئے باقی سبھی کزنس کو ڈانٹ کر ان کے کمروں میں بھیج دیا تاکہ کوئی ایمن کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ ایمن جب اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اسے ابھی تک اپنے وجود پر شاہزیب کا لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے انجانے میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر کے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تبھی علینا کمرے کے اندر آئی اور آتے ہی بولی، واہ میڈم جی، آج تو آپ نے حویلی میں پوری فلمی منظر ہی بنا دیا۔ علینا کی بات سن کے ایمن نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، فالتو کی باتیں مت کرو، میں تو خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس ظالم انسان سے میری جان بچ گئی۔ تبھی اچانک ایمن کے دماغ میں کتے کا خیال آیا، کیونکہ جب شاہزیب اسے یوں پل سے باہر نکال رہا تھا تب وہ کتا وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اصل میں دانش نے چالاکی دکھاتے ہوئے سیٹی بجا کر کتے کو فوراً واپس بلا لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر بات آگے بڑھی تو سب سے پہلے اسی کی شامت آئے گی۔ دوسری طرف شاہزیب جب اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے دل کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا دل عام دنوں کے مقابلے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب نہیں آئی تھی۔ اس نے لندن میں اپنی زندگی کے 5 سال گزارے تھے، جہاں اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی رہی تھی جن کی ساتھ وہ کافی قریب تھا، لیکن ان لڑکیوں کے ساتھ بھی اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا جیسا سکون اسے آج اس نادان لڑکی کے قریب آنے پر مل رہا تھا۔ نہ جانے ایمن نے ایسا کون سا جادو کیا تھا کہ شاہزیب اس کے خلا سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ جب شاہزیب کی آنکھوں کے سامنے ایمن کا وہ گھبرایا ہوا چہرہ آیا تو اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اب اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ اس نٹکھٹ لڑکی کو سیدھا کیسے کرنا ہے۔ وہ غصے یا ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اب شاہزیب نے آرام کرنے کے لیے پیار سا رستہ چنا۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس سے شاہزیب کو بھی سکون ملتا اور ایمن کی اکڑ بھی ڈھیلی ہو جاتی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ایمن اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی بس کروٹیں بدل رہی تھی۔ جب سے وہ سوئمنگ پول میں شاہزیب کے اتنے قریب آئی تھی تب سے اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس نے انجانے میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ علینا نے جب ایمن کو اکیلے میں اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً چٹکی لیتے ہوئے کہا، لگتا ہے شاہزیب بھائی نے تم پر اپنا جادو چلا دیا ہے۔ ایمن نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، اوہ ہلو، زیادہ فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مجھ پہ کیا جادو نہیں کر سکتے اور نہ ہی میری پسند اتنی خراب ہے۔ میں تو اس انسان کی بیوقوفی پہ ہنس رہی ہوں جو خود کو بہت بڑا عقلمند سمجھتا ہے، صرف میں مسکرا کر۔ اچھا یہ ساری فالتو باتیں چھوڑو اور پلیز ذرا باورچی خانے میں جا کر میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ پانی لانے کی بات سنتے ہیں لینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر اپنا سر ہلایا اور روک ٹوک لہجے میں بولی، میں اس وقت اکیلی نہیں جا رہی۔ ایمن نے اسے اپنا پرانا احسان یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا تم اب میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ یاد کرو اس دن آدھی رات کو تمہیں بھوک لگی تھی تو میں تمہارے لیے کھانا لینے نیچے نہیں گئی تھی کیا؟ اور ویسے بھی تم ڈرو مت، جس انسان سے تم ڈر رہی ہو نا وہ اس وقت حویلی میں ہی نہیں ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ دراصل الینا اپنے منگیتر اسفندیار کی بات کر رہی تھی۔ ان دونوں کی منگنی ان کی اپنی پسند سے ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسفندیار الینا کو لے کر بہت زیادہ جذباتی اور جنونی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد الینا کی رخصتی ہو جائے اور وہ اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آئے، لیکن الینا میڈم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کی پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ شادی نہیں کرے گی۔ یہی بات انہوں نے 2 دن پہلے داجی کے سامنے بھی کہہ دی تھی۔ اسی وجہ سے اسفندیار میں اس سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ اسفندیار نے کل رات سے اس سے ملنے کے لیے بھی بلایا تھا، لیکن وہ ڈر کے مارے ملنے نہیں گئی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ گئی تو اسفندیار اس سے ڈھیروں سوال جواب کرے گا اور اپنی ہی باتوں سے پھر اسے پیشمان کر کے چھوڑے گا۔
ये सोचते ही अलीना के दिल में एक सनसनी सी दौड़ गई। जब एमन ने यकीन दिलाया कि असफन्यार घर पे नहीं है तो उसने राहत की सांस लिया। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। वो कमरे से निकली और नीचे के किचन में दाखिल हुआ। वो अभी पानी के गिलास में डाल ही रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर इसकी कमर में अपने मजबूत हाथ डाल दिया और एक झटके में इसे अपने करीब खींच लिया। अपने मंगेतर के बदन की जानी पहचानी खुशबू सूंघते ही अलीना का पूरा वजूद कांपने लगा, क्योंकि वो अच्छे से अंदाजा लगा चुकी थी कि ये वही इंसान है। कैसी हो मेरी जान? असफन्यार के कान के पास झुकते हुए धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला। इसकी इस गहरी आवाज से अलीना की रूह तक कांप गई थी। आप यहाँ इस वक्त? असफन यार ने इसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम एक ही झटके में मेरा फोन काट कर और मुझसे दूर रहकर मुझसे बचकर निकल जाओगे? कहते हुए असफन यार ने एक झटके से अलीना का घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। अलीना इससे नजरें चुराने लगी। असफन यार ने सबसे पहले इसके हाथ से पानी का गिलास लिया और इसे साइड टेबल पर रख दिया, क्योंकि इसे पूरा भरोसा था कि अलीना घबराहट में गिलास तोड़ देगी और फिर इसी का बहाना बनाकर वहां से भाग निकलेगी। असफन यार इसकी नस नस से वाकिफ था। वो अलीना की आंखों में देखते हुए अपने लफ्जों पर जोर देकर बोला, चलो अब मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अलीना ने तेजी से नफी में सर हिलाया और वह रोतनी सूरत बनाकर बोली, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। खौफ के मारे इसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। जब असफन यार ने अलीना के चेहरे पे अपने लिए खौफ देखा तो उसने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए। वो कभी नहीं चाहता था कि इसकी होने वाली बीवी इसके करीब आने पे इस तरह डरे से कांपे। वो तो यही चाहता था कि जब भी वो अलीना के करीब जाए तो वो मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल करे। इसे समझ नहीं आ रहा था वह उस लड़की के दिल से खौफ कैसे निकाले। अलीना इससे साफ इनकार पर असन्यार को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी इसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। क्या मैं तुमसे इस इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? और तब अलीना ने असन्यार की आंखों में देखा और पलटकर जवाब दिया, इसका जवाब आपको मुझसे नहीं बल्कि खुद अपने आप से ही पूछना चाहिए। असफन्यार ने इसके करीब आते हुए कहा, मैं तो हर दिन खुद से यही सवाल पूछता हूँ, लेकिन मुझे कोई ढंग का जवाब नहीं मिलता। अगर तुम खुद मुझे बता दोगी तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये कहते हुए इसने अलीना के बाल इसके चेहरे से हटाए थे। अलीना फौरन झटके से इससे दूर हटी और बोली, क्या कर रहे हैं आप? हम लोग इस वक्त किचन में खड़े हैं, अगर यहाँ कोई आ गया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। असफन यार के होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। ओ वो बोला, मुझे तमाशे का तो पता नहीं, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि अगर किसी ने देख लिया तो दादी से सबसे पहले हम दोनों की रुखसती करवा देंगे। मुझे आपके साथ रुखसती नहीं करानी है। अलीना के मुंह से ये बात सुनते ही असफन यार के चेहरे के तासरात बिल्कुल बदल गए। इसने एक झटके से अलीना का हाथ पकड़ा और उसे फिर से अपने सीने से लगा गया। अलीना का सर जोर से इसकी चौड़े सीने से जा टकराया, जिससे इसके होंठ से एक दर्द भरी सिसकी निकल गई। लेकिन इस वक्त असफर यार पर तो जैसा जुनून सवार था। इसने अलीना के नाजुक कलाई को अपने हाथों में जोर से दबोच रखा था और सीधा इसकी आंखों में देख रहा था। अलीना ने रोते हुए कहा, बस इसी वजह से मुझे आपसे डर लगता है, क्योंकि आपको प्यार करना तो आता ही नहीं, आप सिर्फ अपनी मनमानी करना जानते हैं। इतना कहकर वो इसके सीने पे अपना सर रखकर छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। असफन यार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अलीना इस तरह रोने लगेगी। इसका सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। वो घबरा कर बोला, अरे यार क्या हो गया है? रोना तो बंद करो प्लीज। असफन्यार ने एक बार डरते हुए किचन के दरवाजे की तरफ देखा, कहीं कोई आ ना जाए, वरना यहाँ इसकी शामत आ जाती। वो इस हवेली में किसी से नहीं डरता था, लेकिन वो अलीना की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। वो चुपचाप इसका हाथ पकड़ के इसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया। जैसे ही इसने कमरे के अंदर आकर दरवाजा लॉक किया, लीना को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो रोने के चक्कर में असफन यार के कमरे तक आ गई है। इसने घबरा कर बंद दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कोई इसे बचाने आ जाए। असफन यार इसकी नजरों का मतलब अच्छे से समझ गया था। वो इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और पुरसुकून आवाज में बोला, अब मुझे आराम से बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है, तुम क्यों मुझसे दूर भागती हो? अलीना ने आंसू पोंछते हुए सीधा जवाब दिया, क्योंकि आप मुझे डराते हैं। असफन्यार ने हैरान होकर कहा, मैंने तुम्हें कब डराया? मुझे बस इतना ही बता दीजिए मैडम। असफन्यार हैरान होकर बुत बना खड़ा था जब अलीना ने कहा, मिस्टर असफन्यार, आपने मुझे कब नहीं डराया? जब भी मैं आप मेरे करीब आते हैं तो मुझ पर अपना हुक्म चलाते हैं और मेरे करीब आकर मुझे तंग करते हैं। और मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाला हम सफर चाहिए। अगर आप मुझसे वो प्यार नहीं कर सकते जो मुझे चाहिए तो फिर इस रिश्ते को। अनीना अपनी पूरी बात कर भी नहीं पाई थी। इससे पहले असफन यार ने आगे बढ़ के इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। वो बोला,
जब तुम इस तरह की बातें करती हो तभी मुझे गुस्सा आता है। मरते दम तक इस रिश्ते को खत्म करने की बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना मैं तुम्हारी जबान निकाल दूंगा। अलीना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। ऐसे रोते हुए कहा, क्या आपको अपनी कोई बात बिना धमकी दिए हुए आती है कहने? अलीना को इस तरह रोता देखकर असफंयार ने मायूसी में अपने बालों में उंगलियां घुमाई। इसने खुद को संभाला और बहुत नरम लहजे में कहा, ठीक है, मैं वाकई माजरत का ख्वाह हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने माजी में कभी भी तुम्हें बुरा महसूस करवाया, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अलीना ने मुंह फुलाकर कहा, अगर आप पूरी रात बैठकर कागज पर सॉरी लिखते रहेंगे ना, तब भी मैं आपको माफ नहीं करूंगी। असफर यार मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें किसी और तरीके से मना लेता हूँ, जहाँ जबान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो दोबारा इसके करीब आने लगा तो अलीना ने फौरन अपनी उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी, खबरदार जो आपने शादी से पहले मेरे करीब आने की या कुछ भी करने की कोशिश की, मैं शाहजेब भाई से आपकी शिकायत कर दूंगी। असफन्यार ने हंसते हुए कहा, तुम अपने भाई शाहजेब की बात कर रही हो ना? वो कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि अगर इसने मेरे मामले में कुछ भी कहा तो इसकी खुद की शादी भी खतरे में पड़ जाएगी। अलीना ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है आपका? असफन्यार ने सोफे पर अपने बराबर में हाथ मारकर कहा, इधर आओ बैठो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अलीना वहीं खड़ी रही और उसे शक भरी नजर से देखने लगी। असफन्यार ने अपने गले पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा, कसम से कुछ भी नहीं करूंगा, बस बैठो। आखिरकार अलीना ने इस पर भरोसा किया और चुपचाप सोफे पे इसके बगल में बैठ गई। लेकिन अगले ही पल असफन्यार ने अपनी बात पलट दी। इसने एक झटके से अलीना को अपनी गोद में बिठा लिया। अलीना की धड़कनें तेज हो गई। वो उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके लबों पर खो गया था। अलीना तो अपनी जगह पर पूरी तरह जम सी गई थी, लेकिन इस बार असफन्यार के अंदर ना तो कोई जनूनियत थी और ना ही वो पुराना गुस्सा था, बल्कि वो बहुत प्यार से और सुकून से अलीना के होठों का रस पी रहा था और इसे कतरा कतरा अपने अंदर उतार रहा था। जब असफन यार अलीना से थोड़ा अलग हुआ तो उसने देखा कि अलीना अभी भी खोई हुई है, नजरों से इसकी होठों को देख रही थी। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो असफन यार के दिल को छू गई थी। ये देखते ही असफन यार के चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। इसने इस बार और ज्यादा दीवानगी और शिद्दत के साथ अलीना को अपनी बाहों में भेज लिया। अब के बाद अलीना ने भी कोई दूरी नहीं बनाई, वो भी पूरी तरह इसका साथ दे रही थी। जब असफन यार इसे थोड़ा सा दूर हटा तो अलीना ने दम होके इसके कंधे पे अपना हाथ रख दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। असफन यार ने धीरे से कहा, बहुत शुक्रिया मेरी शरीक, हाँ, थैंक यू सो मच वाइफ। आज आपने मुझे समझा दिया कि मैं आपको मेरा कैसा रूप पसंद है। अगर ये बात आपने मुझे पहले बता दी हुई होती तो हम दोनों इस तरह परेशान नहीं हो रहे होते। अलीना को अचानक एहसास हुआ तो इसने अपनी भीगी नजरों से इसे देखा और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने कहा था आप मुझे कोई राज की बात बताएंगे, मैं आपसे बात नहीं करती। वो उसकी गोद से उठकर जाने लगी, लेकिन असफन यार ने एक झटके से इसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। वो बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ मत सुनो राज की बात। क्या मेरी जान को ये पता है कि एमन और शादेब का निकाह पहले ही हो चुका है? ये सुनते ही अलीना ने हैरान होकर अपने होठों पे हाथ रख लिया। वह हैरत के समुंदर में डूबती हुई बोली, क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? असफन यार ने अपने लफ्जों पर पूरा जोर देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं भला तुमसे मजाक क्यों करूंगा? जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अलीना की आंखों में एक चमक आ गई और वो खुशी से चहकते हुए बोली, इसका मतलब है एमन पहले ही से ही मेरी भाभी है? हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा। असफन यार ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ वाकई बहुत मजा आएगा। और ये कहते हुए इसने एक बार फिर अलीना के कमर में अपना हाथ टिकाया और इसे अपने करीब करने लगा, लेकिन अलीना इस बार इसके इरादों को ताड़ गई थी। वो पृथ्वी से इसके चुंगल से छूटी और तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। असमा जाने से पकड़ने के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन तब तक वो निकल चुकी थी। अलीना जैसे ही आप थी वसवनियार के कमरे से बाहर निकली, सामने कॉरिडोर में एमन खड़ी थी। एमन को देखते ही अलीना ने शर्म के मारे फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ठीक इसी वक्त असफन यार भी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अलीना ने तो वहां से फौरन भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब वहां सिर्फ एमन बची थी, जो हिम्मत करके सीधी अपने भाई के सामने जा खड़ी हो गई थी। एमन शरारती अंदाज में कहा, भाई, अगर मैं अभी और इसी वक्त दादी को जाकर ये बता दूं कि आप अपनी मंगेतर के साथ आधी रात को कमरे में क्या कर रहे थे, तो फिर सोचें आपका क्या असर होगा। असफन यार भी अपने नाम का एक ही था। वो भला अपनी छोटी बहन को इस ब्लैक पेलिंग में कहाँ आने वाला था। इसने उल्टा मजे लेते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दोगी? प्लीज, मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसान मंद रहूंगा। कम से कम दादी गुस्से में आकर हमारी रुखसती तो करा देंगे।
भाई का ऐसा बेबाक जवाब सुनकर एमन का सारा मर्जा करकरा हो गया। हद है भाई, आपको तो मेरी धमकी से डरना चाहिए था और कायदे से आपको ये करना चाहिए था कि आप अपनी जेब से बटवा निकालते और मुझसे पूछते, एमन अपनी जबान बंद रखने की क्या कीमत लोगी। एमन के इस ड्रामाई अंदाज को देखकर असफन यार अपनी गर्दन पीछे झुकाकर जोर जोर से हंसने लगा। इसने हंसते हुए सच में अपना बटवा निकाला और एमन के हाथ में थमा दिया और बोला, लो इसमें जितने भी नकद पैसे हैं वो सब तुम्हारे हैं, और अगर कोई कार्ड मिले तो तुम कल मुझसे जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना, बस अब जाओ। इतना कहकर असफन यार ने मुस्कुराते हुए ईमन के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ईमन को तो पल भर के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इसने खुशी से चलते हुए कहा, वाह मेरी तो लॉटरी लग गई है। वो हाथ में बटवा लिए कॉरिडोर में ही नाचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी सामने से आते हुए शाहजेब को देखकर इसके कदम वहीं के वहीं जम गए थे। वो शाहजेब पहले तो इसकी ईमन को आधी रात को नाचते देखकर हैरान हुआ, फिर इसके माथे पे गुस्से के बल पड़ गए। इसने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया कि रात के 10 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। अभी और इसी वक्त अपने कमरे के अंदर जाओ। इसने अपने हर एक लफ्ज पर अच्छा खासा जोर देकर बोला था। आज इसकी बात सुन के एमन का मूड एक बार फिर खराब हो गया। इसने चिढ़कर कहा, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, वो जैसे मुझ पर पूरा हक रखते हैं। कभी कभी तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मेरे शौहर हो। और गुस्से में पैर पटक कर वहां से पलटने लगी कि तभी शाहजेब ने तेजी से आगे बढ़ के एक झटके में इसकी नाजुक कलाई पकड़ी और उसे खींच के सीधा अपने सीने से लगा लिया। दोनों के बीच की दूरी पल भर में खत्म हो गई। शाहजेब ने इसकी आंखों में आंखें डालते और फिर अपनी नजरों से इसके होठों पर टिकाते हुए गहरी और भारी आवाज में कहा, तुम्हें अच्छे से पता है ना ईमन कि हमेशा अपनी सी लंबी जबान की वजह से तुम्हें सजा भुगतनी पड़ती है। शाहजेब इसके इतने करीब होने की वजह से ईमन की बोलती भी बंद हो गई थी। इसने दबी आवाज में कहा, शाहजेब भाई मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। शाहजेब एक एक लफ्ज को चबाते हुए सख्त लहजे में बोला, अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। ये कहते हुए उसने एमन को पीछे की तरफ धक्का दिया। किस्मत अच्छी थी कि वहां पीछे सोफा रखा हुआ था, वरना एमन सीधे जमीन पर गिर जाती है। धक्का देने के बाद शाहजेब ने एमन की मदद के लिए हाथ बढ़ाना तो दूर की बात, इस पर एक सरसरी सी नजर डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इमन काफी देर तक सोफे पे बैठी गुस्से से तिलमिलाती रही। इसे गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, देखिएगा आपको ऐसी जिद्दी बीवी मिलेगी जो आपको घास तक नहीं डालेगी। पूरा दिन आप अपनी बीवी के पीछे पीछे भागते रहेंगे, तब जाकर कहीं रात के वक्त वो आपके करीब आएगी। ये मेरी बद्दुआ है और सीधे मेरे दिल से निकली है। ए खुदा मेरी इस बद्दुआ को प्लीज कबूल कर लेना। जी भर के अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद एमन पैर पटकते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई, जहां अलीना पहले से ही बिस्तर पर लेटी हुई थी, किसी सोच में डूबी हुई थी। एमन ने चिड़चिड़े लहजे में कहा, यार अलीना इस तरह भाई से छुप छुप कर मिलने से तो कहीं बेहतर है तुम इनसे छुप छुप के शादी कर लो। एमन की आवाज सुनकर अलीना ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वो खुशी से चहकती हुई एमन की तरफ बढ़ी और बोली, यार एमन तुम्हें पता है मुझे आज एक बहुत बड़ी बात पता चली है। अलीना बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक इसके कानों में असफन यार की कही हुई बात गूंज उठी है। संज्ञान ने इसे सख्ती से मना किया था कि वो अभी इस बारे में एमन को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि दाजी ने अभी तक इन दोनों की रुखसती को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं किया था। अलीना के अंदाज को देख के एमन भी पुरजोश हो गई, लेकिन अलीना को एकदम से खामोश होते देख के वो चिढ़ गई। अगर तुम्हें बात बतानी नहीं होती ना तो फिर इस तरह से सस्पेंस भी पैदा मत किया करो। इतना कहकर वो कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गई। तभी अचानक अलीना की नजर एमन के हाथ में मौजूद बटुए पर पड़ी। वो चौंक कर बोली, अरे मेरे होने वाले शौहर का बटुआ तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है। एमन ने तकिए से सर उठाकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, असल में तुमने आज मेरे भाई को जो खुशी दी है ना, उन्हीं इस खुशी के नाम में ये बटुआ मुझे दे दिया है। एमन में बटुए में से पैसे निकालकर अलीना के सामने हवा में लहराए। एमन की बात सुनकर अलीना बिना कोई जवाब दिए शर्म के मारे सुर्ख हो गया और खुद को छुपाने लगी। अब इसका अपना दिल भी अंदर ही अंदर रुखसती के लिए माइल हो रहा था, लेकिन वो ये सब खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब असफन यार खुद एक बार फिर आगे बढ़ के दादी से इन दोनों की शादी और रुखसती की बात करे। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे जब एमन की आंख खुली। कोई इसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। एमन ने जैसे ही जमाई लेते हुए दरवाजा खोला तो सामने शाहजेब को खड़ा देखकर इसका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। एमन ने इसे देखते ही कहा, शाहजेब भाई आप पहले बात तो ये कि मुझे भाई कहना बंद करो। शाहजेब ने इसकी बात बीच में ही काटते हुए सख्त आवाज में बोला, और दूसरी बात यह कि जल्दी से अपना ट्रैक सूट पहनो और नीचे आओ। मैं देख रहा हूँ तो तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो और ये सब तुम्हारे दिन भर खाली बैठने की वजह का नतीजा है। आज से तुम रोज सुबह मेरे साथ जॉगिंग पे जाओगी। ज्यादा शागिर्द का जब हुक्म तो एमन को ऐसा लगा जैसे कि ने सातवें आसमान से नीचे पटक दिया हो। अभी मुश्किल से 1 घंटा पहले इसकी आंख लगी थी, क्योंकि रात को काफी देर तक इसे नींद नहीं आ रही थी और वो मोबाइल देख रही थी। अब जाकर इसकी नींद पूरी हुई।
तो सारा मजा किरकिरा कर दिया और वो अब उसे अपने साथ सब दौड़ाने के लिए भी लेके जा रहा था। तभी यमन की दिमाग ने तेजी से काम लेना शुरू किया। उसने फटाफट ट्रैक सूट पहना, लेकिन वो नीचे लॉन में जाने के बजाय सीधी हवेली के अंदर बने हुए जिम की तरफ भागी, जहाँ रोज इसका भाई असफन यार वर्जिश करता था। अपनी लाडली बहन को सब जिम में देखकर असफन यार हैरान रह गया। उसने हंसते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना? आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल आया? ईमान ने दरवाजे की तरफ चोर नजरों से देखते हुए कहा, भाई मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद मैं रोज आपके साथ जिम में वर्जिश किया करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। इसकी घबराई हुई हालत देखकर हसन यार को पल भर में सारी कहानी समझ आ गई थी कि वो शाजिब से बचकर यहाँ भागी आई है। हसन यार ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया और एमन को रनिंग मशीन पर दौड़ने के लिए कह दिया, लेकिन एमन की फिटनेस का हाल ये था कि सिर्फ 2 मिनट दौड़ने में ही इसकी सांस बुरी तरह से फूलने लगी थी। दूसरी तरफ शाहजेब जब दोबारा एमन के कमरे के बाहर पहुंचा और वहां एमन को ना पाकर सिर्फ अलीना को देखा, तो वो गुस्से से लाल हो गए और एमन को ढूंढने लगा। जब वो नीचे आया तो दादी ने उसे बताया वो वापस आ गया। एक बार फिर पूरी अब अपने कमरे में जा चुकी थी। एमन ने भी नहीं कर सकती वर्जिश वाली बात को कौन से पूरे 1 घंटे तक रनिंग मशीन पर भगाते रहेंगे। अब हालत ये थी कि जिम खत्म होने के बाद पैर पे लेटी लेट गई थी और गहरे गहरे सांस पढ़ाई पे किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। इसने ऐसे सीधा बहाना बना कि असफन यार को अलीना पर बहुत प्यार आया था। इसका दिल कर रहा था कि वो आगे बढ़कर अलीना का माथा चूम ले, पर मुसीबत ये थी कि इस वक्त वो पूरे खानदान के बीच बैठा था। अगर दादी के सामने से कोई ऐसी हरकत भी की होती तो शादी तो दूर की बात है, दादी इससे अपनी लाडली पोती का रिश्ता ही छीन लेते। दिन की शुरुआत ही इतनी खराब हुई हो तो ईमन को पूरा यकीन हो गया था इसका बाकी का दिन भी अब ही बुरा गुजरने वाला है। शाम के वक्त हवेली में कुछ कजन्स आए हुए थे जो खास आए थे। इन्हें देखते ही ईमन को एक बार फिर सोनहरी मौका मिल गया था कि शाहजब की बुराई करना शुरू कर दे। ईमन कुछ चंद के पास खड़े इन कजन के सामने आए शाहजब के खिलाफ जहर उगल रही थी। अलीना इसे 2-3 बार खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन एमन कहाँ मानने वाली थी। अब इसने शाहजब की शादी का मौजू छेड़ दिया और पूरे जोश में बदुआ देते हुए बोली, तुम देखना, तुम लोग इनको दुनिया की सबसे काली और मोटी बीवी मिलेगी, बिल्कुल इनकी तरह, और अखड़ दिमाग और तमीज। एमिन के मुंह से शाहजब के लिए ये बात सुनते ही अलीना ने तड़प को अपना सर उठा पीट लिया, क्योंकि वो जानती थी कि शाहजब की असल बीवी तो वो खुद ही एमन है। ओह हेलो, मेरे भाई बहुत खूबसूरत हैंडसम है, इसके बारे में ऐसे फालतू बात मत करो। हीना ने फौरन अपने भाई की साइड लेते हुए गए। एमन ने भी जवाब दिया, हाँ हाँ, वो जितना हैंडसम है ना, मैं इसी के हिसाब से इसकी बीवी का हुलिया बता रही हूँ। बड़ा एमन की सारी बातें सुन रहा था, पर गुस्सा होने के बजाय इसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था कि एमन की ये बद्दुआ कभी सच नहीं हो सकती। शाहजब को तो पहले ही रात को खाने के टेबल पर एमन ने अलीना से अपने साथ कमरे में चलने को कहा। आज दिन भर की भाग दौड़ से एमन बहुत थक चुकी थी और चाहती थी कि दोनों लाइट बंद करके जल्दी से सो जाएं, क्योंकि इसे अकेले कमरे में रहने से बहुत डर लगता था।
कमरे में नहीं जाएगी। इमन ने इसके आगे बहुत मिन्नतें की पर कोई फायदा नहीं हुआ। शाम को आए कजन्स भी अपने घर जा चुके थे। अब मजबूरी में इमन को अकेले ही अपने कमरे में जाना पड़ा। वो अपनी अम्मी के पास भी नहीं सो सकती थी क्योंकि इसकी अम्मी इसके अब्बू को लेकर बहुत जज्बाती थी और इनके अलावा वो अपने बिस्तर पर किसी से भी शेयर नहीं करती थी। दूसरी तरफ शाहजेब इस वक्त दादी के पास बैठा हुआ था और अफसन यार की शादी की बात कर रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ा राज था जो हवेली के कुछ ही लोगों को मालूम था। जब एमियन और शाहजेब बहुत छोटे थे तभी हवेली में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से दाजिद ने शाहजेब की हिफाजत के बेशरत का निकाह एमन के साथ करा दिया था। वही कुछ साल पहले जब असफन ने अलीना को पसंद किया तो दादी ने इन दोनों को भी निकाह करा दिया। तब असफन और अलीना दोनों बड़े समझदार होते हैं। शुरुआत में अलीना इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी क्योंकि वो असफन से बहुत डरती थी। सच तो यह था कि असफन ने इसे थोड़ा आ गया था। जहां तक ईमन और शाहजेब की शादी का सवाल था तो जब से ये सब हुआ था ईमन बहुत छोटी थी और इसे रिश्ते का कोई होश नहीं था। लेकिन शाहजेब इस वक्त काफी बड़ा था। इसे बचपन से ही पता था कि ईमन इसकी बीवी है। बाद में जब शाहजेब अपनी आगे पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क चला गया ही नहीं जानती थी तो वो इतना नजरअंदाज कर रही है वो आगे ही चलकर इसकी जरूरत से ज्यादा समझ आएगा। दादी से सारी बातें साफ करने के बाद इन्हें असफन यार की शादी के लिए राजी करके शाहजेब वहां से उठा। अब इसका रुख सीधा एमन के कमरे की तरफ से। एमन ने अलीना के कहने पर कमरे का दरवाजा लॉक नहीं किया था क्योंकि अलीना ने इसे ये उम्मीद दिलाई थी कि वो रात को किसी भी वक्त वापस आ सकती है। शाहजेब ने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया वो खुलता ही चला गया और दबे दबे कमरों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। एमन सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी मानो कोई चांद का टुकड़ा हो। शाहजेब पल भर के लिए इसके रूप में खो गया। एमन के सीने से कम्बल थोड़ा हटा हुआ था। इसकी गर्दन पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें चमक रही थी। सैफ का दिल किया कि वो आगे बढ़ के इसे चूम ले। वो पूरी तरह खुद को भूलकर जैसे ही एमन के ऊपर झुकने लगा तभी अचानक एमन की आंखें खुल गई। अब वो जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि शाहजेब ने फुर्ती से इसके होंठों पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। एमन जहां थी वहीं थम सी गई। उसकी आंखों में गहरी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। चिल्लाना मत, शाहजेब ने इसके कानों के पास झुककर धीरे से कहा। उसके चेहरे से अपना हाथ हटाया। एमन ने हाँफते हुए कहा, आप इस वक्त मेरे के यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं? शाहजेब ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरी शादी किसी काली या बदसूरत लड़की से नहीं होने वाली, बल्कि मेरी किस्मत में खुदा ने पहले से एक बहुत खूबसूरत लड़की लिख दी है जो इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने मौजूद है। ये कहते हुए शाहजेब ने जैसे ही एमन की कमर पर अपना हाथ रखा, एमन अंदर तक सहम गई। शाहजेब की इस नजदीकी ने इसकी धड़कनें बढ़ा दी थी और वो पूरी तरह से पेशमान हो गई थी। इसे लग रहा था कि शाहजेब शायद इसके साथ कोई जबरदस्ती करने आया है। एमन ने झटका देकर इसका हाथ अपने से दूर किया तो शाहजेब ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो बोला, शौहर की बात ना मानने वाले बीवियों को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। दोबारा ऐसी मत हरकत मत करना। क्या मतलब है आपका? कौन सा शौहर और कौन सी बीवी? एमन ने चीखते हुए कहा था। मेरी जान, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं आपका शौहर हूँ और आप मेरी बीवी हो। शाहजेब के अल्फाज सुन एमन के कानों में किसी बम की तरह फटे थे। इससे पहले कि एमन कुछ समझ पाते, शाहजेब ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन कर दी। इसने अपनी जेब से इसका नामा निकाला और एमन के सामने रख दिया। इसके साथ ही इसने कुछ पुरानी तस्वीरें भी निकाली जिसमें छोटी सी एमन दुल्हन बनी बैठी थी और इसके बराबर में छोटा सा शाहजेब दूल्हा बना हुआ था। तस्वीरें देखते ही एमन को याद आया कि इसे बचपन में एक बार ये तस्वीर मिली थी। जब इसने अपनी अम्मी से पूछा था तो उन्होंने बात टालते हुए कहा था, बचपन में हमने तुम्हें ऐसे ही लाल दुपट्टा ओढ़ाया दिया था, तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए हमने ये फोटो खींच ली थी। एमन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये तस्वीर इसकी असली निकाह की थी, जहाँ इसे सब की मौजूदगी में एक छोटी सी दुल्हन बनाया गया था। आज इसने निकाहनामा और तस्वीरें अपनी आंखों से देख ली थी, इसलिए अब वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि शाहजेब इसका शौहर है। शाहज़ेब ने लाइट दोबारा बंद कर दी और वो फिर से एमन के करीब आ गया। फिर इसने बहुत प्यार से एमन को बेड पर सीधा लेटा दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। एमन फौरन होश में आ गई। इसने घबराकर शाहज़ेब के चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथ मारे और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन शाहज़ेब ने फुर्ती से इसके दोनों हाथ को पकड़कर लॉक कर लिया। वो इसके बहुत करीब आ गया था और बड़ी शिद्दत से इससे अपने प्यार का एहसास कराने लगा। एमन अभी तक इस गहरे सदमे में थी। वो बोली, प्लीज अभी नहीं शाहज़ेब भाई।
मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, शाहजेब ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, बार बार मुझे भाई कहकर हमारे रिश्ते का क्यों मजाक उड़ा रही हो? एमन ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मैं आपकी बात पर ऐसे कैसे यकीन कर लूं? मैं कल सुबह खुद दादी से इसके बारे में पूछूंगी। अगर सच साबित हुई तो मेरी जान आपको वही करना होगा जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगा। शाहजेब ने एक बार फिर से एमन के होठों पर अपने लब रख दिए। इस बार तो एमन की सांसें भी बुरी तरह से फूलने लगी थी। शाहजेब ने धीरे से इसके होठों को आजाद किया और सीधा इसकी गर्दन पर झुक गया, जहां वो चूमते हुए अपनी मोहब्बत के गहरे निशान छोड़ने लगा। एमन इस वक्त पानी से बाहर निकाली गई किसी मछली की तरह तड़प रही थी। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शाहजेब ने इसके कान के पास झुककर बहकी हुई आवाज में कहा, मैंने दादी से हम दोनों की रुखसती की बात कर ली है। उन्होंने इजाजत दे दी है, तो क्यों न एक छोटी सी सुहागरात आज ही मना लेते हैं। ये कहते हुए इसने एमन को बेड से थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी कमीज के पीछे लगी हुई जिप को खोलने लगा। एमन ने घबरा के इसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया ताकि इसे रोक सके, लेकिन इसकी इस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। शाहजेब की आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त अपने होश हवास में नहीं है, बल्कि वो तो इस नाजुक सी लड़की के सहर में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। जैसे ही शाहजेब ने एमन के कंधे से शर्ट को थोड़ा सा हटाया, एमन शर्म के मारे पानी पानी हो गई और फौरन अपना मुंह शाहजेब के सीने में छुपा गई। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये शख्स इस तरह से अचानक आएगा और उसके वजूद का मालिक बन जाएगा। शाहजेब दीवानगी में इसके कंधे को चूम रहा था और एमन बेबसी में इसके बालों को अपने हाथों में जकड़े हुए थी, बस दाएं बाएं अपनी गर्दन हिला रही थी। कंधे पे भी अपने प्यार की मोहर लगाने के बाद शाहजेब एक बार फिर ऊपर आया। उसने इसकी धड़कनों को अपने पर अपने लब रख दिए। शाहजेब का दूसरा हाथ इस वक्त एमन की कमर को मजबूती से दबोचे हुए था। एमन के लबों से अब सिसकियां निकल रही थी, जो शाहजेब को अंदर से और ज्यादा पागल कर रही थी। वो बुरी तरह हाँफते हुए बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाई, आप बहुत बुरे हैं। एमन की खराब होती हालत देखकर शाहजेब ने खुद पे कंट्रोल किया और फौरन से दूर हटकर खड़ा हो गया। इस वक्त इन दोनों की हालत ऐसी थी जैसे वो अभी किसी बहुत बड़े तूफान से बाहर निकले हो। एमन घबरा कर कंबल की मदद से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शाहज़ाद ने गहरी आवाज में इससे कहा, मुझे पूरा यकीन है अब दोबारा कभी तुम्हारी ज़बान पे मेरे लिए भाई का लफ्ज़ नहीं आएगा। अब तो तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। एमन ने कंबल के अंदर से अपनी शिकायती नजरों से अपने शौहर को देखा। आप बहुत ही बेशर्म इंसान है, एमन ने गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे आपसे बहुत नफरत है। नफरत नहीं मेरी जान, मोहब्बत कहो, जो मुझे अपने प्यार में पागल करना अच्छे से जानते हैं। शाजिब जैसे ही दोबारा इसकी तरफ बढ़ने लगा, एमन घबरा कर बेड से उठी और कमरे के दूसरे कोने की तरफ भागी। अरे कहाँ जा रही हो? अब मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये बताने और समझाने आया था कि हम दोनों का रिश्ता कितना मजबूत और पाक है। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े दुरुस्त किए और कमरे का दरवाजा खोलने से पहले ईमन को आंख मारकर एक शरारती इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। शाहजेब के जाने के बाद ईमन काफी देर तक इसी कोने में बैठी रही। इसे अपने आसपास हर चीज के ख्वाब जैसी लग रही थी। रात को दूसरे पहर जब अलीना चुपके से कमरे के अंदर आई तो एमन ने गुस्से में सीधे जाकर उसके बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया। अलीना डर से चीखते हुए बोली, अरे क्या कर रही हो पागल लड़की? मुझे गंजा करने का इरादा है क्या? अगर तुम्हारी वजह से मेरे बाल खराब हो गए ना, तो तुम्हारा भाई तुम्हें जिंदा छोड़े नहीं छोड़ेगा। हेमंत ने कहा, तुम्हारे इस आखड़ भाई से मेरा निकाह हो चुका है, तुम अपने शौहर को गालियां दे रही हो। ऐसी बीवियां जन्नत में नहीं जाती। तुम और तुम्हारे भाई की ऐसी की तैसी, आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? जहाँ जिसको देखो मुझे यहाँ ज्ञान दे रहा है। ईमान ईमान ने गुस्से में अलीना के बाल छोड़ दिए। अब इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो मायूसी से अलीना को देख रही थी। अलीना को इस पर तरस आ गया। इससे प्यार से कहा, अरे मेरी जान तुम क्यों रो रही हो? अलीना आगे बढ़ी, लेकिन एमन तेजी से पीछे हट गई। मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ। अलीना ने बेड पे लेटते हुए कहा, ये बात मुझे नहीं बल्कि सीधे दादाजी को जाकर बताओ, क्योंकि एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा कर रखना कि हमारे खानदान में बचपन के निकाह और मंगनियां कभी नहीं टूटा करती। और वैसे भी शाजिब भाई तो मर कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर अलीना गुनगुनाते हुए सो गए, जबकि एमन पूरी रात जागती गुजरी। अगले 2 दिन तक शाजिब हवेली में कहीं भी नजर नहीं आया। इस बीच एमन ने जब जब खुद जाकर नाजी से बात की तो सब कुछ साफ हो गया कि बचपन में सच में इन दोनों का निकाह हो चुका था और वो शाजिब की बीवी थी। एक दिन हवेली में काफी सन्नाटा था। घर के सभी मर्द हवेली से
दूर डेरे पे गए हुए थे, जबकि औरतें किसी दावत पे गई हुई थी। दादी ने एमन को भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन एमन ने साफ मना कर दिया था और घर पर ही रुक गई थी। शादिब को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि एमन हवेली में ही मौजूद है। इसे लगा था पूरी हवेली खाली है। वो इस वक्त हवेली के पिछले हिस्से में खड़ा था, जहाँ इसके सामने एक अनजान आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। शादिब के खास आदमी ने इस शख्स के माथे पे पिस्तौल तान रखी थी। असल में दिलावर नाम का वो आदमी शाजिब की जासूसी करते हुए पकड़ा गया था और इस बार तो इसने शाजिब पर हमला करने की कोशिश भी की थी। शाजिब का इरादा इसे जान से मारने का बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस इसे डरा धमका के इसके आंखों का नाम गुलवाना चाहता था, ताकि वो अगले उसके आखिर यहाँ से किसने भेजा है वो गुलवा सके ये बात। शाजिब ने दिलावर की आंखों में आंखें डालकर और ठंडे लहजे में कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने इस आदमी का नाम नहीं बताया तो यहीं पे तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। 1 2। अभी शाजिब के मुंह से 3 निकला भी नहीं था कि अचानक इसे एक अनजानी पहचानी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसने फौरन पलट कर देखा था। कुछ ही दूर पर एमन खड़ी थी और उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। शाजिब को देखते ही समझ आ गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। एमन ने खौफनाक नजरों से शाजिब को देखा और तेजी से नफी में अपनी गर्दन हिलाने लगी। इसने डर के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर लड़खड़ाने की वजह से वो सीधी जमीन पर गिर पड़ी थी। शाजिब ने घबरा कर इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो बुरी तरह चिल्लाए, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर हो जाओ, तुम एक कातिल हो। दरअसल एमन ने शाजिब के मुंह से निकलने हुए वो अल्फाज सुन लिए थे, जहां वो कह रहा था कि वो उसकी गर्दन उड़ा देगा। एमन मासूम थी, वो ये नहीं जानती थी कि शाजिब सिर्फ इस आदमी को डराने के लिए झूठ बोल रहा था, कि इसने पहले भी कई लोगों को सबक सिखाया है, जबकि वो असल जिंदगी में किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जाने अनजाने में एमन को बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी थी। शाजिब ने आगे बढ़कर इसे छूने की कोशिश की, लेकिन एमन इस खौफ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब एमन को होश आया तो वो अपने कमरे में थी और इसके आंसू लगातार बह रहे थे। दादाजी और उसका भाई अफसन यार इसके पास बैठे थे, जबकि शाहज़ेब कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था। दादाजी ने जब एमन को शाहज़ेब के तरफ देखते हुए पाया तो उन्होंने मजबूती से अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि शाहज़ेब पहले ही दादाजी को अकेले में सारा मामला समझा चुका था। इसके बाद एमन ने दोबारा फिर कभी शाहज़ेब की तरफ अपनी नजरें नहीं उठाई थी। अगले कुछ दिनों में जब दादाजी ने फिर से एमन की शादी की बात छेड़ी तो इसने साफ मना कर दिया। इसने कहा दिया कि वो ये शादी कभी नहीं करेगी और वो दादाजी से अपना निकाह तोड़ने की जिद करने लगी थी। असफन यार भी इस बात पर एमन के हाँ में हाँ मिला रहा था। इसने भी साफ अंदाज में दादी को ये बता दिया था कि अगर मेरी बहन इस शादी के लिए राजी नहीं है तो फिर आपको ये रिश्ता तोड़ना ही होगा। जब शाहजेब ने ये बात सुनी तो गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। इसने फौरन अलीना का हाथ पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम मुझे अपनी बहन नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें अपनी बहन नहीं दूंगा। यहाँ पर अब एक नहीं बल्कि दो दो रिश्ते टूटेंगे। ये बात सुनते ही असफनियार ने मजबूती से अपने होंठ भेज लिए और एलिना की तरफ देख कर जो दिया, जो डर के अपने भाई शाजिब के पीछे छुपी हुई थी। एलिना के इस अंदाज से साफ जाहिर था कि वो अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। एमन को तो जैसे किसी भी चीज का होश नहीं था। जब भी वो शाजिब को देखती तो उसकी नजरों के सामने वही पुराना मंजर घूमने लगता था, जहां वो जख्मी आदमी शाजिब के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और शाजिब एक जालिम इंसान की तरह इस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। ये सोचते ही इसकी हालत खराब हो रही थी। सलीना और असवन यार का रिश्ता टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसे तो बस किसी भी तरह शादेब से अपनी जान छुड़ानी थी, क्योंकि वो उसकी नज़रों में एक बहुत बड़ा बुरा इंसान बन चुका था। शाहजेब ने बाद में अकेले में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन एमन ने साफ मना कर दिया। इस हंगामे के बाद अलीना और असफन के बीच भी बात चीज काफी हद तक खत्म हो चुकी थी और ये दूरी खुद अलीना ने बनाई थी। लेकिन असफन यार भी अपनी जिद का और अना का पक्का था। वो हवेली के इस हिस्से में ही रहता था जहाँ वो मर कभी नहीं जाना चाहता था। इसने तो अलीना की तरफ देखना तक छोड़ दिया था। इसकी ये बेरुखी अब अलीना को अंदर ही अंदर तड़पाने लगी थी। अलीना ज़्यादा दिनों तक अपना एटीट्यूड नहीं दिखा पाया और बिना अपनी गलती का एहसास होने लगा था। एक दिन असफन लाइब्रेरी में बैठा अपना कुछ काम कर रहा, तभी अलीना दबेपा वहां पहुंची। असफन ने जैसे इसे देखा वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन अगले ही पल अलीना ने दौड़कर असफन को अपने पीछे से गले लगा लिया। असफन अपनी जगह पर जैसे जम गया। इसने बेकाबू होकर प्यार से अलीना के बालों अपना अपना हाथ रखा। अलीना ने टूटते हुए रोते हुए कहा, आप इन दोनों की वजह से हमारा रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? अलीना, हमारे मैं हमारे रिश्ते को खराब नहीं करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस अपनी बहन की फिक्र में हूँ। मैं इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होने दे सकता। क्या तुम देख नहीं रही हो कि इसकी क्या हालत हो गई है?
वो तुम्हारे भाई का नाम सुनते ही डर से कांपने लगती है। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है असफन, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। मन को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन इस काम में आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हम 4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो। अलीना ने इसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो असफयान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अलीना ने इस मंसूबे के तहत अगले दिन एमन को बहाने से हवेली के बाहर ले आई, जहाँ एमन को पता ही नहीं था कि वहां पर शाहजेब पहले से ही खड़ा इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि एमन वहां से भागने की कोशिश करती, शाहजेब ने झटके से इसका हाथ पकड़ लिया, उसे गाड़ी की तरफ ले गया। वो उसे गाड़ी में बैठाकर सीधा अपने फार्म हाउस ले आया। पूरे रास्ते एमन चिल्लाती और शोर मचाती रही, लेकिन शाहजेब ने इसकी एक भी बात नहीं सुनी। फार्म हाउस के हाल में ले जाने के बाद शाहजेब ने इसे सोफे पर बैठाया, खुद इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इसने बहुत ही लम्ब लहजे में कहा, एमन, जो भी बात करनी है सीधी मुझसे करो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्योंकि सिर्फ मैं वही हूँ जो तुम्हारी ये इस गलतफहमी को दूर कर सकता। ईमान ने रोते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, आप एक कातिल हैं। शाहजेब ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि मैंने किसका कत्ल किया है। आपने इस दिन इस आदमी को जान से मार दिया। ये कहकर ऐमन फिर से फूट फूट कर रोने लगी। शाहजेब ने अपना सर पकड़ और बोला, क्या तुम्हें मैं इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान लगता हूँ? मैंने इस आदमी को जान से नहीं मारा है, लेकिन अगर तुम्हें मैं ये बता दूं कि इस आदमी ने गांव की दूसरी लड़कियों के साथ क्या क्या किया है तो खुद इसे जान से मार दोगी। इसके बाद शाहजेब ने यमन को सारा सच बताया कि जिस आदमी को वो हवेली में लेकर आया था, वो सिर्फ डरा रहा था। इसने गांव की न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थी। वो इनकी इज्जत के साथ खेल चुका था और कुछ लड़कियों को अगवा करके शहर के बड़े स्मगलरों को बेच चुका था। शाहजेब इसी रात यमन को के घरों में भी लेकर गया था, जहां से वो लड़कियां गायब हुई थी। पूरी रात शाहजेब इसे यही सब कुछ दिखाता और समझाता रहा। अब जाकर यमन का दिमाग धीरे धीरे खुलने लगा था और इसे एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। अब वो चुपचाप सर झुकाए शाहजेब के सामने बैठी हुई थी। शाहजेब ने इसकी तरफ देखा और कहा, नाराज तो वैसे मुझे तुमसे होना चाहिए मन, लेकिन नाराज होने के बजाय मैं तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ कि मुझे ही वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। शाहजेब के लहजे में एक साफ शिकवा था। दूसरी तरफ सच जाने के बाद एमन का दिल शाहजेब के लिए पूरी तरह पिघल चुका था। वो जिसे गुनहगार समझ रही थी, वो तो असल में दूसरों का मसीहा निकला। एमन ने अपना सर झुकाया और धीरे से कहा, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। शाहजेब ने इसे अपने बाहों में लेते हुए शरारत से कहा, इस तरह सूखी सूखी माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें मुझे प्यार से मनाना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगा। मैंने नजर उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त अपनी बीवी के लिए हक और प्यार था। अगले ही पल एमन ने प्यार से अपना लब शाहजेब के होठों पर रख दिया। शाहजेब ने भी पूरी शिद्दत से इसे अपने गले लगा लिया। इस बार एमन भी इसका पूरा साथ दे रही थी। ये दोनों के बीच की सारी तिलकियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगली सुबह वो दोनों चुपचाप हवेली वापस आ गए। शाहजेब और यमन की रात में हवेली से बाहर जाने के बाद असफन यान और एलेना के अलावा घर में किसी को भी नहीं बताती। अगले दिन यमन ने खुद दादी के पास जाकर शादी और सती के लिए हाँ कह दी। इधर अफसन यार को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसने भी आगे बढ़कर लीना के से दिल से माफी मांग ली। आखिरकार लगभग 2 हफ्ते के बाद दादी ने इन चारों की बहुत धूमधाम से शादी और रुखसती करवा दी, और इस तरह चारों की जिंदगियों का एक खूबसूरत और नया सफर शुरू हो गया।